And also, guys, to add one thing, this session, not the entire session, but some parts of it will also go on YouTube. And there is a reason behind it. Guys, I have been speaking to many students, both who are part of the Demolish Prelims program and otherwise. Those students who are also not part of the program. And there is a very disturbing thing that has come to fore, that students have been following a very divorced approach, disconnected approach, an approach that doesn't align with the present trends of the prelims exam at all. मतलब सिर्फ करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के नाम पर न्यूज़पेपर 10-12 महीने के कंप्लीट किए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो रहा है, या कहीं और से वो कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनीवन्स नेम. और द सेम थिंग अप्लाइज टू टेस्ट. टेस्ट भी दे रहे हैं, बट कंप्लीटली उन्होंने मुझे टेस्ट बताए, अगेन आई वोंट टेक एनी नेम, बिल्कुल भी प्रेजेंट ट्रेंड, चेंजिंग ट्रेंड के साथ अलाइनमेंट नहीं है. सेम थिंग अप्लाइज टू योर स्टैटिक. स्टैटिक में भी वही चीज बार बार पढ़े जा रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़े जा रहे हैं, एनवायरमेंट पढ़े जा रहे हैं, जो भी स्टैटिक बुक है एनवायरमेंट की, so on and so forth. But again, without paying attention to the important micro themes, the most critical micro themes which are being repeated many times again and again by UPSC. So today what we are going to do, we'll come to a few questions and we'll see how far do we remember not just the answer, सिर्फ आंसर याद रखना यहाँ पर पर्पस नहीं है, but the reasoning behind those answers, number one. And why is it important to discuss those questions? Because those are part of those important micro themes which we'll be discussing in more detail in the upcoming micro theme sessions, be it PIB micro theme sessions and PYQ micro theme sessions. यहाँ पर गलती से 2022 दिख रहा है. It was a 2024 question. The question was, there are no parables in the Upanishads and Upanishads were composed earlier than the Puranas. सबने पढ़ रखा है ये क्वेश्चन? Yes. सबसे पहले तो गाइस टेल मी द आंसर. इसका आंसर क्या होगा? B. Beta. बीटा. Yes, Beta. Only statement 2. Yes. ठीक है. Yes. Upanishads were composed earlier than the Puranas. Again, बेसिक ज्ञान है, इतना तो हमको पता ही होता है from basic readings of our NCERTs and other basic books. Statement 1, there are no parables in the Upanishads. Again, we have discussed this. कोई ये पढ़कर नहीं जाता कि parables होते हैं नहीं होते हैं. Now it's a different thing. लॉजिक बिल्डर कोहॉर्ट में आपने जो पढ़ा है कि स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर को देखकर हम पहचानते हैं कि व्हाट इज इट मोर लाइकली टू बी, वेदर इट इज मोर लाइकली टू बी राइट और वेदर इट इज मोर लाइकली टू बी रॉन्ग. सो यहाँ पर आर्टिफिशियल निगेशन को आपने देखकर एलिमिनेट कर दिया स्टेटमेंट 1 को और मार्क कर दिया. एम आई राइट सो फार? Yes, sir. राइट. तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 है, बट अदरवाइज कोई पढ़कर नहीं जाता. बट गाइज टेल मी, व्हाट डू यू थिंक इज द पेपर्स दैट आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस? गाइज, if I ask you what is the learning that we can derive from here, so the micro theme is mentioned above. Now this is not a PIB micro theme necessarily, this is a PYQ micro theme that we'll be covering in the PYQ micro thematic sessions, prominent constituents of religious literature. Now one may ask कि सर constituents क्या होते हैं? अब हमको क्या उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे और जानना पड़ेगा कि भाई किस उपनिषद में और किस वेद में, किस उपवेद में क्या लिखा हुआ है? No. So guys, if I tell you कि, or if I ask you, when Lord Krishna says to Arjun, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, in the Bhagavad Gita, again it's part of the overall Mahabharata, what kind of instruction is it? How would you categorize it? Guys, ethics में आपने पढ़ा होगा, didactic, we call it didactic verses. आदेश दिया जा रहा है कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, क्योंकि that's the right thing to do. Similarly guys, if I tell you Upanishads की अगर हम बात करें, so there are dialogues and discourses, like there are many examples, like many Upanishads also present teachings in the form of conversations between teachers. Now those teachers can be rishis, sages, divine beings, and students in this place can be disciples, kings, seekers, etc. Again, I'm giving you an example and this is just to put the context. ये क्वेश्चन डायरेक्टली आने वाला नहीं है, ठीक है, बस आप बेहतर समझ जाओ उसके लिए. अब यहाँ पर डायलॉग्स और डिस्कोर्सेस की बात हो रही है. सो देयर वाज वन इन बृहदरण्यक उपनिषद की यजनवल्क्य और मैत्रेयी के बीच में एक डायलॉग था. सिमिलरली देयर वाज वन बिटवीन नचिकेता एंड यमा, द लॉर्ड ऑफ डेथ, इन द कथा उपनिषद. अगेन एग्जांपल. अब डायलॉग और डिस्कोर्सेस के अलावा क्या है उसमें उपनिषद में? देयर आर मेटाफर्स एंड एलेगरीज. अगर आपको एग्जांपल दूं, अगेन डायरेक्टली इस पर सवाल नहीं आएगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इन छंदोग्य उपनिषद देयर इज दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. सॉल्ट इन वाटर, पानी में नमक, एज अ मेटाफर फॉर द ऑल परवेडिंग ब्राह्मण. ऑल्सो कथा उपनिषद का हमने एग्जाम्पल पहले भी दिया. तो अगेन कथा उपनिषद कंपेयर्स ह्यूमन बॉडी टू अ चैरियट वेयर द सेंसेस आर द हॉर्सेस and the intellect is the charioteer.
तो मेटाफर्स हैं, एलेगरीज हैं. सिमिलरली पोइट्री और हिम्स आपको मिलेंगे. ऑल्सो यू विल फाइंड रेफरेंसेस टू कॉस्मोलॉजी एंड थेरीज ऑफ क्रिएशन, रोल ऑफ माया, इल्यूजन. देन यू विल फाइंड मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. अब यहाँ पे ओम ओम मेडिटेशन अक्सर हम सुनते हैं. फिर ब्रेथ ब्रेथ कंट्रोल, प्राण विद्या जिसको बोलते हैं. Now this comes from प्रश्न उपनिषद. अगेन स्पेसिफिक एग्जांपल्स रेफरेंसेस नहीं पूछे जाएंगे. एथिकल मॉरल मॉरल टीचिंग्स है. अगेन पैराबल्स के बारे में पूछा जा रहा है तो एथिकल मॉरल टीचिंग उसमें ऑटोमेटिकली आई जाती है. डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ है, आत्मन, ब्राह्मण, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअल इंसाइट्स एंड सो ऑन. गाइस, अब यहां पर अगर आपसे पूछा जाए या क्वेश्चन आ जाए कि पैराबल्स या उपनिषद्स कंटेन एक्स और दे डोंट कंटेन वाई. नाउ दैट एक्स and that why can be anything. It can be a parable, it can be a discourse, dialogue, it can be metaphor, allegories, it can be poetry or hymns, it can be theories on cosmology or creation, it can be meditation, spiritual practices, ethical moral teachings, doctrine of Brahman or self, Atman as we call it, mysticism, spiritual insights, so on and so forth. I hope you realize the importance of this particular micro theme, prominent constituents of religious literature. पहले ऐसे क्वेश्चंस ना यूपीएससी पूछती थी, नॉर वी वर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर ऑन दिस लाइंस. लेकिन अब पानी का बहाव जिस तरफ मुड़ेगा, हमको भी उस तरफ मुड़ना जरूरी है. ये बोल देना कि भाई हम रिलीजियस लिटरेचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्यों पढ़ेंगे, दिस इज नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ अवर प्रिपरेशन, दैट वोंट हेल्प. राइट, यूपीएससी पूछ रही है, हमको करना पड़ेगा. सो आने वाले टेस्ट में और आने वाले माइक्रो थीमेटिक सेशंस में हम ये और डिटेल में करने वाले हैं. Now guys, I hope things are clear on this. If I ask you before attending this session, did you know the categorization that we have made? ठीक No, है, sir, I are don't know. part of the Upanishads, poems, hymns, metaphors, allegories, right? So this is just to make you realize that this is an important topic. इससे पहले जब हमने ये क्वेश्चन किया guys, before we came back to the PYQ, we were discussing the paper. कौन सा वाला पेपर जो हमने अटेम्प्ट किया था? ठीक है, संहितास, ब्रह्मणास, आर्यंकास, उपनिषद्स, ऑल ऑफ द अबव वाज द करेक्ट आंसर. यहां पर मैं देख रहा था कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही थी याद करने में. तो द लॉजिक बिहाइंड गिविंग यू ऑल दिस कॉन्टेक्स्ट इज, यहां पर देखकर अगर आपको लगता है कि चलो नहीं आ रहा है याद, कोई बात नहीं, सो दैट्स अ रॉन्ग परसेप्शन. याद अगर नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है. इन लाइंस पर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. और गाइज एंशियंट हिस्ट्री में अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से फंस जाता है, दैट्स द मैसिव लीप यू गेट, मैसिव. द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेम टेस्ट वाज क्वेश्चन नंबर 25. गाइज आपने अटेम्प्ट कर रखा है टेस्ट में, क्या आंसर होगा इसका? अच्छा, नाउ गाइज ये क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है, इसका सही आंसर भी देखेंगे. यहाँ पर कोई माइक्रो थीम दिख रही है क्या आपको? यूआईक्यूज को याद आ रहे हैं इससे रिलेवेंट, इससे जुड़ते हुए? अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र, वेरी गुड. हु इज दिस? पृथा. पृथा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो गाइस सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं. गाइस इसका आंसर है डेल्टा. यहाँ पर डेलिनेट कर रखा है, पूरा एनलिस्ट कर रखा है. सप्त का मतलब क्या है गाइस? सप्त, 7, राइट. पंच, पंजड़, पंजाब, पांच, सप्त, 7, अष्ट, 8. अब आते हैं सप्तंगा थ्योरी गाइस. 7 सप्तंगा थ्योरी ऑफ स्टेट. और यहां पर एनलिस्ट कर रखा है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स. स्वामी द सोवरेन, अमात्य मिनिस्टर, जनपदा हरमित, जनपदा यस सर, ये समझा दीजिए द सर. पीपल एंड द टेरिटरी, दुर्ग, फोर्टिफिकेशन, कोश, ट्रेजरी, दंड, इट्स नॉट डंडा, इट्स दंड, द आर्मी और द फोर्स, एंड मित्र, द allies. So tell me, when we go to the examination hall, do we go No, prepared? we don't read this stuff in detail. We don't read this stuff. No. लेकिन this was asked as recent as 2022. If UPSC can ask a question on Kautilya's Arthashastra, then it can very well ask a question on the Saptanga theory as propounded by Kautilya himself. Make sense? Yes. Yes sir. ठीक है. अब यहाँ पर माइक्रो थीम है एंशियंट and medieval administrative works. If I ask you guys, do you remember any prominent administrative work from the medieval period? Indian context की बात कर रहा हूं मैं. सर आईनी अकबरी. Very good, very good. Pritha, I must tell, you are giving the right answers and you are thinking on the right track.
Now, more than Aini Akbari, it would be Akbarnama because Aini Akbari would be a constituent. हाँ मतलब इट्स अ पार्ट। हाँ It's a part of वही Akbarnama. अकबरनामा ही बोलने वाली थी, पर मैंने सोचा कि अकबरनामा तो मतलब थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा इसलिए। Yes. So, Pratiksha, Akbarnama, it's a treatise, it's an administrative work. Makes sense? Yes. In the upcoming microthematic session, we'll be taking up Akbarnama and other prominent works under this particular micro theme. The point being discussed over here is not everyone out there is learning and discussing Saptanga theory broadly. हम भी बहुत deep नहीं जा रहे हैं, at least at the broad level. But if we are doing it, we are doing it in accordance to this micro theme, and we'll be doing it more in the upcoming microthematic sessions. Next question, question number 30. As the following epics with their authors and religious associations. Epics, author, religion. Jiva ka Chintamani, Mani Mekalai, Kundala Kesi. Guys, just to add a point here, the micro theme here, as you can see on the screen, is prominent but less known. Prominent जरूर है, but less known Jain and Buddhist scholars. और 2022 का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 24 का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। 24 वाला तो ये था कि संगाभूति, an ancient Buddhist monk traveled to China at the end of 4th century AD, was the author of commentary on. Similarly, 2022 का ये क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल पर्सन नोन एज आर्यदेवा दिग्नान नाथमुनि, जैन स्कॉलर है क्या, बुद्धिस्ट स्कॉलर है क्या, राइट? सो आई होप यू गेट द रिलेवेंस ऑफ दिस माइक्रो थीम। बार बार इस पर क्वेश्चन आ रहा है, वी आर एक्सपेक्टेड टू नो दिस इन एंड आउट। उस वजह से टेस्ट में भी वो क्वेश्चन पूछा गया था, आने वाले माइक्रोथेमेटिक सेशंस में भी हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड द फैक्ट दैट यू फाउंड इट डिफिकल्ट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब कुछ बच्चे आंसर ही नहीं कर पाए, कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया, ठीक है, दैट शुड बी अ मेजर रेड फ्लैग, क्योंकि आपकी गलती वहां हो रही है, माइक्रो थीम को यूपीएससी इंपॉर्टेंस दे रही है। फैक्ट वाइज देखोगे, सो दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, उसी वजह से हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है, हमने इसको पीवाईक्यू से जोड़ा। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है बहुत कम कम शब्दों में दी गई, जीव का चिंतामणि, मणि मेकलाई, कुंडल केसी, इसको आपको नोट करना है, दैट्स इट। और आने वाले सेशन में इसको और डिटेल में समझेंगे